Hi everyone, welcome to the new video. So we'll continue our discussion on the newspaper The Hindu from both prelims and mains perspective, dated February 4th, 2022. The other videos regarding the month of February, which is February 1st, 2nd and 3rd, are already there on the channel. Please do access them from the playlist, the link of which you will be getting in the description box of this particular video as well as in the comment section in the pinned message. A few videos related to the month of January are also there on the platform, and simultaneously I'm trying to cover them as soon as possible, so you would be getting the access to that as well. Those of you who are new to the channel or are just by chance landing upon here and checking out the videos, in case you find it relevant for your preparation, if you find the content useful, please do like, comment, share and subscribe to the channel. Please help me share the word and please share your feedback in the comment section. Let's now continue. So it is February 4th, as I just mentioned. The first news on the first page talks about the Indian diplomats to boycott the Beijing Games. Now, if you remember, we have already talked about China and Olympics, okay, in the previous video. Now, in case for the new learners, see, this is very important that you are regularly following these videos. Okay, these are done on a daily basis. So because at times I will have the reference to the news which was already there earlier, right, the previous day. So it will not be possible for me to keep repeating it again, because that will not make sense, and of course that will kill the time as well. So you will need to be doing it regularly, and current affairs anyways is about being regular, being consistent, right? So please do finish all your earlier videos also, so that you have a connectivity and a sense of what is happening around in the world, because the news develops over a period of time and it is not something that just overnight happens, right? So that relation would be very helpful in forming, either an opinion, depends on the news content, or at least knowing about the details of a particular न्यूज़. ठीक है, तो इसको भी जैसे हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब उसी में आगे बात हो रही है कि नाउ द इंडियन डिप्लोमेट्स आर बॉयकॉटिंग. सो दे हैव टर्म्ड द चाइनाज डिसीजन टू फील्ड अ PLA सोल्जर इन्वॉल्व इन द जून गालवान क्लैशेस. अच्छा, गलवान वैली को भी लेके मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है कि आप मैप वर्क करोगे, ठीक है, कहाँ लोकेटेड है, एंड ऑफकोर्स रिलेटेड इश्यूज, और फिर वो बाईलैटरल में भी कवर हो जाएंगे बिटवीन इंडिया एंड चाइना. So that will happen from the IR perspective. The map will happen from the geography perspective. This also in general will be about the IR perspective that you will be knowing about the news. अब तक जब तक ये सिर्फ चाइना और ओलंपिक से रिलेटेड था, ये उनका अपना इशू है. But here the idea is कि why the Indian diplomats are boycotting. So read the news, find it out and have that content in your mind so that you can use it for the bilateral relations things, or let's say the global थिंग्स हैपनिंग. उस कॉन्टेक्स्ट में आप उसको अपने पास एक पॉइंट रख सकते हो. नेक्स्ट दे से द हाई कोर्ट स्टेज हरियाणा जॉब कोटा फॉर लोकल्स. अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट. अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या होना चाहिए विथ यू कि वाई पंजाब एंड हरियाणा, द टू डिफरेंट स्टेट्स, आर हैविंग वन हाई कोर्ट. ठीक है, विच मीन्स, अगर again I'm assuming that my learners are the beginners and you do not know the static of let's say judiciary and the high courts. अब अगर आपको ये चीज़ मान लीजिए नहीं पता है, तो आपको ये लाइन पढ़ते ही फर्स्ट क्वेश्चन दैट शुड फिगर आउट इन योर माइंड इज दैट यू शुड बी क्यूरियस इनफ टू नो कि क्या ऐसा कोई प्रोविजन है, या फिर बाय व्हाट प्रोविजन दीज टू स्टेट्स आर हैविंग हाई कोर्ट्स. अनदर क्वेश्चन शुड बी कि ये जो प्रोविज़न है वो कन्वेंशन से चलता है या कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, या कहाँ से आया, कोई एक्ट से आया, किस तरीके से आया. थर्ड, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में है तो विच आर्टिकल एट्सेट्रा, क्या वो आर्टिकल शुरू से कॉन्स्टिट्यूशन में था राइट फ्रॉम द बिगनिंग, और इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड वाया एन अमेंडमेंट. इफ इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड वाया एन अमेंडमेंट, व्हाट वॉज दैट अमेंडमेंट, व्हेन वॉज इट डन, और क्या और भी स्टेट्स हैं इन इंडिया जिनके की हाई कोर्ट्स, आई मीन 2 states or multiple states are having single high court. Similar kind of question. Then what is the total number of high courts in the country, and then the whole functioning related things, etc related to just high courts. So basically this is about the static portion of the high court. Forget about the news for the time being. What I'm trying to help you find out is that
each line that you read, how do you extract the pointers out of that? Because if you just go on by the typical news, just by the headlines and seeing the headings and the subheadings, और हो गया भाई मेरा तो because मैंने newspaper cover कर लिया. Don't fool yourself, to be very honest I would say, and I'll be very blunt in this also. Please don't fool yourself for the reason that अगर ये छोटी छोटी चीज़ें आपको क्यूरियस नहीं बना रही हैं, which means you are not having that wider perspective. You are still having that narrow, method of your preparation, which will somehow not work out for a longer period of time. So it's better that because you're a beginner, you have good enough time in your hand to cover those things right here, right now, and from here on. Now, हाई कोर्ट का स्टैटिक तो आप लक्ष्मीकांत पॉलिटी से आराम से कवर कर लोगे, ठीक है. तो जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी आपको बोले हैं, 6 से 7 क्वेश्चंस हो चुके हैं. यू विल फाइंड द आंसर्स टू दोज क्वेश्चंस. तो आपका आराम से हाई कोर्ट क्लियर हो जाएगा. हाई कोर्ट के साथ अगर आप साथ में सुप्रीम कोर्ट के फंक्शनिंग को भी कर पाते हो, द वे आई अप्रोच इंडियन पॉलिटी एंड द वे आई टीच, एंड बाय द वे अनअकैडमी पे 7 से क्लासेस शुरू भी हो रही हैं. सो इन केस दोज ऑफ यू हु आर द सब्सक्राइबर्स कैन ऑल्सो टेक द क्लासेस देयर इंडियन पॉलिटी, wherein I am going to do the same thing which I tell you in the class. For example, if I am doing union parliament, I would compare it with the state parliament, state legislature. So union legislature and state legislature. If I'm doing union executive, I would compare it with the state executive. If I'm doing Supreme Court, I'll compare it with High Court. If I'm doing any other thing for that matter which needs a comparison with the state counterpart, it becomes easier for you to correlate things, right? So that is what I'm going to do there. In case somebody who is not a subscriber and wish to, let's say, take the subscription, you can also use my code Arpita Prakash 7 and you would be availing a 10% discount on Unacademy Plus subscription. This was just for your information because Indian Polity course is coming sooner. Anyways, let's get back to the news basically. ये तो था कि मैंने यहाँ से आपको static बता दिया. Now they say that the court granted an interim stay on the controversial law. तो देखिए पहला ही बात यहाँ पर जो आ रही है, दैट इज़ अबाउट द कॉन्ट्रोवर्शियल लॉ. तो लॉ क्या है वो तो हम पढ़ेंगे, बट द की वर्ड हियर ऑल्सो इज कॉन्ट्रोवर्शियल. सो ऑफकोर्स यू विल हैव टू नीड टू नो दैट व्हाट एग्जैक्टली इज द कॉन्ट्रोवर्सी इन्वॉल्व इन दिस, ठीक है. दूसरी चीज़, फॉर द रिजर्वेशन ऑफ 75% जॉब्स इन प्राइवेट कंपनी, सोसाइटीज़ एंड ट्रस्ट फॉर द लोकल हरियाणा कैंडिडेट्स, ठीक है. तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इशू क्या है. अब यहाँ पे एक चीज़ तो आपको ये जाननी है कि 75% क्या ये जो रिजर्वेशन यहाँ पर इन्होंने रखने की बात कही है, क्या ये बाकी जगह भी होता है या व्हाट इज़ द कैप ऑफ दैट रिजर्वेशन. इस चीज़ को आप पता करेंगे, पहली चीज़. दूसरी चीज़, इस पूरे मुद्दे से यहाँ पर क्या बात हो रही है कि एक क्वेश्चन जो और उठ के आ रहा है, जब आप पूरी न्यूज़ क्लिप पढ़ोगे तो दिस हाईलाइटेड पोर्शन यू विल सी. सो दे आर टेलिंग एज टू वन क्वेश्चन टू द स्टेट एज टू हाउ दे कुड ग्रांट द रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट ऑन द बेसिस ऑफ अ डोमिसाइल, कि आप किसी पर्टिकुलर जगह को बिलोंग करते हो, उस बेसिस पर हम आपको एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं बिकॉज इट वायलेट्स आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो अभी दिस विल नॉट मेक मच सेंस टू यू बिकॉज आई एम अज्यूमिंग दैट यू डू नॉट नो अबाउट आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि भाई दिस इज़ अ फंडामेंटल राइट दैट यू नीड टू नो दैट दिस फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ योर राइट टू इक्वालिटी, ठीक है. तो इसका आप जब स्टैटिक कवर करोगे, इन जनरल राइट टू इक्वालिटी क्या है, द मल्टीपल आर्टिकल्स एंड विद इन दैट स्पेसिफिकली आर्टिकल 16. तो जब आप उस आर्टिकल 16 के प्रोविजन को समझोगे एंड डू इट फ्रॉम द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, भले आप डिटेल किसी भी किताब से पढ़ रहे हो, बट द बेयर आर्टिकल यू शुड डू डायरेक्टली फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन. अब जब आपने उस आर्टिकल को समझ लिया, देन यू विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्ट्रोवर्सी, देन यू विल अंडरस्टैंड द dichotomy between the real article and what's happening in this case, ठीक है. बाकी again they are talking that it was against the provisions of the constitution and the basic principle of meritocracy also, because this acts as the foundation for business to grow and remain competitive. Another thing nothing in the first page. Second page पे आते हैं. So NHRC पर बात हो रही है, that is National Human Rights Commission. इसका आप स्टार्टिंग करोगे, ठीक है, और उसी का काउंटर पार्ट जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है आप वो भी कर लेंगे. तो साथ में अब आपको क्या है कि आइडिया मिल जाएगा कि फंक्शनिंग कैसे होती है, कॉम्पोजिशन कैसे होता है, एट्सेट्रा, किस तरह की बॉडी है. ऑफकोर्स दैट इज ऑल्सो वेरी मच नीडेड.
वंस यू डू दैट, अब उनसे रिलेटेड जैसे NHRC से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आएगा, आप उनके फंक्शनिंग जो भी आपके पास स्टैटिक किताब आपको लिस्ट देगी, इट विल बी ईजियर फॉर यू टू को रिलेट टू इट. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ इन्होंने जैसे क्या बोला, दैट NHRC हैज़ रिटन टू द दिल्ली गवर्नमेंट टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन in connection with the wretched living conditions of migrant workers staying in shipping containers. Imagine, placed along a road behind Andhra Pradesh Bhavan in central Delhi. ठीक है, ये दिल्ली गवर्नमेंट के लिए बात की जा रही है, लेकिन imagine about the condition of the workers living in the containers, and this is what the NHRC is asking the government to take action on. मतलब ये इस तरीके के मुद्दों पर ह्यूमन राइट, बेसिक राइट है ना कि आप इस तरीके से कैसे रह रहे हो, तो ह्यूमन राइट से रिलेटेड मुद्दों पर जो है वो इश्यूज को डील करते हैं. तो क्या उनका फंक्शनिंग है, क्या उनका दायरा है जिसमें वो काम करते हैं, और अब आप उनके कौन से फंक्शनिंग से ये एग्जाम्पल रिलेटेड है, ये आप फिगर आउट कर सकते हो. सिमिलरली, द मोर न्यूज़ यू विल रीड अबाउट NHRC, it will be very easier for you to correlate because you have already done the static and you can just easily मैच दैट विद दी अप्रोप्रिएट जो भी इनका फंक्शन आपने पढ़ा होगा. उसके अलावा यहाँ पर बात की जा रही है एक और एक्ट की. आपको मैंने फर्स्ट क्लास जनवरी, जिन्होंने दोज ऑफ यू हु आर दी रेगुलर लर्नर्स, अगर आपने जनवरी 1 की वीडियो देखी है, देयर इन आई हैव टॉक्ड अबाउट सेवरल एक्ट्स दैट यू हैव टू प्रिपेयर, वेयर इन वी डिड टॉक अबाउट दी UAPA, which is Unlawful Activities Prevention Act. So anyways, you do the static details of that and it would be okay. Nothing much here. Marital rape is getting covered almost every day, so you have to have a follow-up on that. I'll not repeat it. अच्छा, इस तरीके से किसी भी major personality, specifically somebody who is related to anything, I mean, the aspect of art and culture, जिनसे रिलेटेड कुछ ऐसा मेजर न्यूज़ आता है, आई वुड से दैट यू शुड नो अबाउट द पर्सनैलिटी एंड ऑफकोर्स द जॉनरा दैट दे बिलोंग टू, लेट्स से द काइंड ऑफ आर्ट दैट दे हैव बीन प्रैक्टिसिंग. फॉर एग्जाम्पल, दे आर टॉकिंग अबाउट भीमसेन जोशी जी एंड म्यूजिक से रिलेटेड, ठीक है, सो सेलिब्रेटिंग 100 years. तो क्यों? क्योंकि अब आर्ट एंड कल्चर में कन्वेंशनल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, और दिखने में जो लगता है कि जो पूछे जा रहे हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स हैं, बट द आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस ऑल्सो हैव सम बैकिंग, सम सेंस. सो देयर इज अ रीजन इफ लेट्स से दे आस्क अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सनैलिटी, और लेट्स से दे आस्क अबाउट द जॉनरा रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर पर्सनैलिटी, क्योंकि उनसे रिलेटेड कुछ बहुत मेजर न्यूज़ में रहा था. 100 साल सेलिब्रेट करने की बात हो रही है, तो मजाक तो है नहीं, ठीक है. तो फिर आप उनसे रिलेटेड थोड़ा सा सर्च करेंगे एंड द काइंड ऑफ म्यूजिक एक्सेट्रा यू विल ऑल्सो रीड ऑन, और फिर जो भी स्टैटिक आपको मतलब टॉपिक मिल जाएगा उसको आप अपनी आर्ट एंड कल्चर की किताब से ज़्यादा डिटेल में कवर करेंगे. नेक्स्ट इसमें कुछ नहीं है एडिटोरियल, सो वी डू स्किप इट फॉर द टाइम बीइंग. नेक्स्ट पेज सेज दैट US सेज इट डज नॉट एंडोर्स रिमार्क ऑन फॉरेन पॉलिसी. नाउ हियर क्या है तो ये कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन, क्योंकि पॉलिटिक्स, बेसिक जो पॉलिटिक्स होती है उससे रिलेटेड है, एंड दैट्स नॉन ऑफ आवर बिजनेस. लेकिन हियर बिकॉज US ने ये बात करी है, ठीक है, इसीलिए हमारे लिए थोड़ा सा रेलिवेंट हो जाता है. इंटरनल वट एवर इज हैपनिंग इन द पॉलिटिकल सिचुएशंस इज नॉट which is needed for the examination. But here it is telling that the US has said that it does not endorse the Congress leader Rahul Gandhi's contention that Prime Minister Modi's foreign policy strengthened the Pakistan-China relationship, and that it was for the countries in question to speak for themselves. So because US is commenting something related to this Pakistan-China relationship and of course the foreign policy aspect, तो इसमें external जो players हैं वो भी इन्वॉल्व हो जा रहे हैं. बस इसीलिए इस न्यूज़ को मैंने हाईलाइट किया है, अदरवाइज अगर ये सिर्फ इंटरनल पॉलिटिक्स का हिस्सा होता हम इसको स्किप कर देते. ऑल्सो ये वाला पैराग्राफ वुड बी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द ग्लोबल सिचुएशंस. दो कंट्रीज़ के बीच के रिलेशन इज ऑल्सो टू बी अंडरस्टूड वेरी क्लियरली, so that you can relate it with the kind of relation India would be having. ठीक है, यहाँ पर क्या है, Pakistan is a strategic partner of the United States. We have an important relationship with the government in Islamabad, and it's a relationship that we value across a number of fronts. Imagine, Pakistan और US के अच्छे relations की बात हो रही है, so now you have to figure out, and the more you will see the details of the kind of relations that India is having with Pakistan separately, and the kind of bilateral relations India is having with United States separately. Now when you do these two bilateral relations separately, ठीक है, अपने अपने जगह पर, and then you try to see कि क्या पाकिस्तान और US के बीच में जो ये strategic partnership की बात हो रही है उसका कोई impact इंडिया पे पड़ता है कि नहीं, और पड़ता है तो किस तरीके का पड़ता है. इसीलिए ये न्यूज़ जो है वो हमारे काम की IR पर्सपेक्टिव से हो जाएगी, अदरवाइज वी कैन इग्नोर इट.
ओके, नेक्स्ट ईयर दे हैव टॉक्ड अबाउट अनदर थिंग. इस तरीके की सारी चीज़ें जो हैं वो आपको मैंने बार बार बोला हुआ है कि प्लीज़ कीप हाईलाइटिंग. भले आपको न्यूज़ इज़ जस्ट यू रीड इट एंड अगेन लेट इट गो, बिकॉज इसमें कोई आपसे नहीं पूछेगा अबाउट द शेयर होल्डर्स एट्सेट्रा, लेकिन उसके जो की वर्ड्स हैं उसको आपको स्टार्टिंग में प्रिपेयर करते जाना है. सो दे हैव टॉक्ड अबाउट द आर्बिट्रेशन रूल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, एंड द NCLAT, which is National Company Law Appellate Tribunal. We have talked about it. I have told you to do the static of tribunal and then see the details of it. Next is about, again, this is again related to a state specific news, politics etc. लेकिन हम governance में भी आ जाएगा. बट हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि they have mentioned about this national pension scheme. This is national pension. ठीक है, अभी यहाँ तो इन्होंने ठीक है बात कर दिया क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर स्टेट हैज़ बीन टॉक्ड अबाउट, उसको बस मैंने हाईलाइट कर दिया है क्योंकि उसके बारे में भी थोड़ा बहुत मेंशन किया हुआ है, लेकिन आई हैव नॉट हाईलाइटेड द डिटेल्स ऑफ इट बिकॉज फॉर अस एनीथिंग ऑफ नेशनल सिग्निफिकेंस इज़ व्हाट मैटर्स. सो लव NPS के बारे में आप थोड़ा सा पता कर सकते हैं, जैसे इन्होंने दिया कि इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई द सेंटर फ्रॉम 2004 एंड देन इम्प्लीमेंटेड बाई द स्टेट गवर्नमेंट एट्सेट्रा. Also, under the NPS, the pension value depends on the corpus saved by the employee at the time of retirement and subject to rise or fall in the investment value. You never now know कि prelims में इस तरीके के question आएंगे या नहीं आएंगे, because it is an important scheme. ठीक है, they can ask you correct or incorrect statement or something. तो पता होने में, और स्पेशली जब न्यूज़पेपर में दिया हुआ है तो आपको उसमें कोई हार्म नहीं है, आपका 1 मिनट भी नहीं लगेगा. इफ़ यू जस्ट मेक नोट्स, वो भी आपको आना चाहिए. NPS आपने लिखा, उसके जो भी 3 4 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहीं से मिल जा रहे हैं उसको करते चाहिए. बाद में व्हेन यू आर रिवाइजिंग एंड एडिटिंग एंड डूइंग एड ऑन और वैल्यू एडिशन टू योर नोट्स, आप बस ऐड अपने पॉइंटर्स एक्स्ट्रा सर्च करके करते जाइए. ठीक है, नेक्स्ट इज अबाउट, आप यहाँ पर देखेंगे अगर, सो अगेन दिस इज अ स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम अ मिनिस्टर, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर, बट द स्टेटमेंट एज सच डजंट मैटर मच फॉर अस. Rather, the content of the statement matters, because in the content what is being talked about is act that is Representation of the People Act 1951. Now this is very important because RPA altogether is a separate section in your GS2 syllabus. Otherwise also आपको electoral politics में ये पढ़ना ही है. ठीक है, इसका स्टैटिक भी यू कैन डू फ्रॉम लक्ष्मीकांत और इंटरनेट फॉर दैट मैटर, बट सिलेबस में अलग से भी दिस इज मैंशन. सो यू हैव टू प्रिपेयर RPA 1950 एंड 51, द कॉम्पोनेंट्स ऑफ इट. बाकी फिर उस पर जो भी करंट अफेयर्स बिल्डअप होगा, और चूंकि अभी इलेक्शन का टाइम है तो हो सकता है ये बार बार न्यूज़ में आपको मिल भी जाए, दैट यू कैन जस्ट कीप एडिंग ऑन. नेक्स्ट पेज पे आएंगे अगर हम, इस पेज पे, तो यहाँ पर बात हो रही है चंद्रयान 3 सेट फॉर लॉन्च इन अगस्त. कोई भी ऐसा स्पेस रिलेटेड न्यूज़ है, ऑफकोर्स बार बार मैंने बोला हुआ है, यू हैव टू सी द डिटेल्स ऑफ. नाउ दैट द टॉक अबाउट लेट्स से चंद्रयान 3, सो यू बेटर शुड नो अबाउट कि मिशन किस चीज़ के बारे में है, क्या है, एट्सेट्रा. And for example, they say that it is a follow-up to Chandrayaan 2 launched in 2019. So when was Chandrayaan 1 launched and what were the characteristic features of that? Then Chandrayaan 2, ठीक है, कितना सक्सेस, कितना फेलियर, एट्सेट्रा, वो सब आप देख लेंगे. एंड देन 3 के बारे में बात हो रही है. Anything related to let's say ISRO or NASA, I have told you, and some other space agencies also are of importance. अब जैसे इसी में इन्होंने बात कर दिया जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, ठीक है, GSLV Mark 3. तो अब आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, ओके, कि किस तरीके के लॉन्च व्हीकल्स होते हैं जिसमें GSLV Mark 3 क्या है, किस तरीके का, उसका रेंज क्या है, और उसको हम किस लेवल पे रख सकते हैं. तो वो आप जब स्टैटिक करोगे लॉन्च व्हीकल का इन द स्पेस साइंस एंड टेक वाला पोर्शन, यू विल एनीवेज डू दैट. तो इट विल नॉट बी डिफिकल्ट फॉर यू टू डू. अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ सैटेलाइट ऑर्बिट्स वगैरह के बारे में आप बात कर लेंगे तो आपका अच्छा खासा स्टैटिक जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा. ओके, वर्ल्ड न्यूज़ या IR पे अगर हम बात करते हैं, सो इसको मोस्टली हम 2 चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं इस पेज को. वन इज़ फॉर द मैपिंग विच इज़ वेरी प्रोमिनेंटली यूज्ड, एंड प्लीज़ ट्रस्ट मी, इफ़ यू जस्ट फॉलो दिस एक्सरसाइज फॉर 5 to 6 months every single day without delaying, without procrastinating, without just taking things lightly, you will cover your entire atlas, at least the world related things. क्योंकि इंडिया का सारा डिटेल नहीं आता है न्यूज़ में, क्यों हम वर्ल्ड पेज के हिसाब से कर रहे हैं. ऑल द कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, मेजर वन एटलीस्ट आपका फिजिकल, पॉलिटिकल सब कवर हो ही जाएगा. पॉलिटिकल तो बहुत अच्छे से हो जाएगा, फिजिकल दैट डिपेंड्स ऑन द न्यूज़ ऑफकोर्स. ठीक है, तो अब जैसे कि यहाँ पर आ गया आपका बेलारस. अच्छा, एक और चीज़ मैं बोल रही थी कि सो वन इज़
what we use for the map, another is what we use for the IR वाला aspect. ठीक है, relations जहाँ हम बात करते हैं, जो कि आपके GS2 का एक मेजर हिस्सा है, जहाँ पे आपको bilateral multilateral relations को लेके कवर करना है, वो भी यहाँ से काफ़ी हद तक कवर हो जाता है. रशिया डिप्लॉयज मोर ट्रूप्स इन बेलारस. न्यूज़ आप बस ओवरऑल पढ़ के छोड़ देंगे, क्योंकि टिल द टाइम वट एवर इज हैपनिंग इन दी वर्ल्ड इज़ नॉट डायरेक्टली इम्पैक्टिंग इंडिया, हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, बट अगर हम जान लेते हैं तो इट्स गुड इनफ, क्योंकि इशू है, बिल्डअप हो रहा है. सो एज एन अवेयर सिटीजन, येस वी डू शुड नो अबाउट इट. बट आप सारे प्लेसेस को ऐसे मार्क करते जाओगे एंड यू विल फिगर इट आउट कि मैप में कहाँ पर है. पुतिन एंड इमरान एट ओलंपिक्स ओपनिंग. ठीक है, यही ओलंपिक वाला इशू था जिस पर हमने अभी बात करा. इसको आप एक बार बस डिटेल में पढ़ लीजिए. इसमें से अगर आपको कुछ लगता है कि जो आप रिलेशंस में यूज़ कर सकते हो तो आप वो पॉइंट नोट करोगे, अदरवाइज जस्ट स्किप इट, जस्ट रीड इट एंड स्किप इट. ठीक है, क्रिप्टो प्रॉफिट्स पर बात हो रही है. जब अभी हमने पिछले कुछ दिनों में बजट से रिलेटेड कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स देखे हैं, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द क्रिप्टो करेंसी एंड दी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. बस उसी चीज़ से रिलेटेड है, तो अगर आपको उसका स्टैटिक पता है, एनीवेज यू विल बी एबल टू रिलेट द करंट अफेयर्स. But I have already told you time and again, for the economic portion, the sooner you finish your static syllabus, the better you will be grasping the news. Otherwise, it will not make much sense to you. PMI को लेके ऑलरेडी बहुत बार अब हम डिस्कस कर चुके हैं, तो देयर इज़ नो पॉइंट रिपीटिंग मच ऑन दैट. बाकी इस दिन के पर्टिकुलर इकोनॉमी सेक्शन में देयर इज़ नो इम्पोर्टेंस वाला न्यूज़. स्पोर्ट्स में से अभी आप फिगर आउट करते चले जाएंगे. ठीक है, ओके. एक्सप्लेनर इस बार यूजुअली 2 रह रहे थे, आज एक इन्होंने दिया हुआ है, क्योंकि दे हैव डेल्ट विद वन सिंगल टॉपिक बट इन ग्रेटर डिटेल दैट रिलेट्स टू योर इंडियन इकोनॉमी पोर्शन. एंड दे से द नीड टू बूस्ट लेबर इनकम एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. तो क्या है इनकम से रिलेटेड चीज़ें, एंड नीड तो बाद में आएगी कि उसको बूस्ट करने की क्या ज़रूरत है, बट द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट एग्जैक्टली आर दे. ठीक है, सो फर्स्ट यू विल फिगर आउट दिस, देन यू विल understand what do you understand by the consumption expenditure, होता क्या है. Then they have talked about a term fiscal consolidation, that what are the features of fiscal consolidation. तो features जाने से पहले समझेंगे तो fiscal consolidation होता क्या है and how is it shaping the budget allocation. See, you know, so many things they are answering just in one article with the help of graphs, data and written stuffs. तो question answer format में ये आपको बहुत अच्छी insight देगा if you prepare it thoroughly. For example, the first question is, what was the economic context to this year's budget formulation? Imagine, this is such a great question, and this should come in the minds of at least, I would say, the aspirants, because you are preparing things from a different angle. For you, budget is not just about किस चीज़ का दाम बढ़ा और किस चीज़ का दाम घटा, right? Because it is way beyond what the other ordinary citizen is doing. नहीं तो फिर आप किस मायने में एक सीरियस एस्पिरेंट हो या कैंडिडेट हो, किस मायने में आप चीज़ों को डिफरेंटली देख रहे हो. Secondly, you are supposed to be more aware than the ordinary citizens, जिनको चीज़ों के दाम से ही सिर्फ फ़र्क होता है. बट आपके दिमाग में ये क्वेश्चन बिल्कुल आना चाहिए कि जो बजट जब फॉर्मुलेट होता है तो वो किस माइंडसेट के साथ, किन चीज़ों के बैकिंग को ध्यान में रखते हुए फॉर्मुलेट होता है. दिस इज़ वॉट दे आर टॉकिंग. दिस वॉट वॉज द इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट. देयर वुड बी मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट, देयर वुड बी सोशल, पॉलिटिकल एटसेट्रा कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो टू बजट्स फॉर्मुलेशन, बट वॉट वॉज द इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट टू दिस ईयर्स फॉर्मुलेशन. ठीक, इन्होंने आंसर दिया, उसी में इन्होंने लेट्स से कुछ टर्म्स पे बात की. जैसे उन्होंने आपको क्या यहाँ पर टर्म दे दिया है, कंजम्पशन जीडीपी रेशियो. ठीक है, उन्होंने इस चीज़ पे बात की, तो अब आपको उसका स्टैटिक पता होना चाहिए ना, वो स्टैटिक समझ में आना चाहिए कि दैट कंजम्पशन जीडीपी रेशियो होता क्या है. दूसरा क्वेश्चन वो बोलते हैं दैट हाउ हैज़ द बजट फेयर्ड इन दिस बैकड्रॉप एंड व्हाट आर द की शॉर्टकमिंग्स. सीधा सीधा आपको बेसिकली शॉर्टकमिंग्स और चैलेंजेस का एक पूरा सा आंसर है. यू फिगर आउट द पॉइंटर्स एंड नोट इट डाउन सेपरेटली. Then they are also telling you that what are the implications for the development spending. Implications है, ठीक है, वो उसका भी आप pointers निकाल लोगे. 3 major and then of course the figures at glance. अच्छा, not only 3, a 4th question is also there. Why is the budget's fiscal consolidation, अभी यहाँ पर आया ना question, यहाँ पर fiscal consolidation approach a concern from the macroeconomic perspective. तो कंसर्न तो आप बाद में समझेंगे, पहले तो ये समझिए कि मैक्रो इकोनॉमिक क्या होता है. एंड इफ देयर इज अ टर्म लाइक मैक्रो इकोनॉमिक, देयर मस्ट बी अ टर्म लाइक माइक्रो इकोनॉमिक. सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ मैक्रो इकोनॉमी एंड माइक्रो इकोनॉमी. एंड द easiest way to get that answer, even if you do not do Google search, is to just go through your NCERTs. Right in the beginning, अगर आप book देखोगे, class 12th economy NCERT has 2 books.
Microeconomics and macroeconomics. For the syllabus of UPSC, we only prepare the macroeconomics book, we do not do the microeconomics. उसका सिर्फ एक चैप्टर थोड़ा सा होता है इंपॉर्टेंट, जहाँ पे डिमांड सप्लाई और मार्केट चीज़ों की बात होती है, बट वो आपका कहीं और से भी कवर हो जाता है. लेकिन जो दोनों किताबों की जो इंट्रोडक्शन है ना, उसमें उन्होंने बात किया हुआ है दिस बेसिक डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमी एंड मैक्रो इकोनॉमी. जब आप वो समझ लोगे तो पहले तो आपको की टर्म समझ में आ जाएगा, then you go on to understand the term what is fiscal consolidation for that matter, and when you know these two terms आपको वो concern और approach अपने आप समझ आ जाएगा. थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, I do understand. It might sound you like अरे यार सब कुछ तो करना ही पड़ रहा है, कैसे होगा, why are things not that simple? But if things would have been that simple, I'm sorry, but they would not have come up with just 700 or 800 posts each year. It depends. इस बार it's 861, but otherwise it's पिछले 1-2 बार से ये 700s में रह रहा था, कभी उसके पहले 900 में भी रह रहा था. The idea is not that. The idea is कि 10 लाख बच्चे अगर अपियर हो रहे हैं तो 700, 800, 900 बच्चों का ही सिलेक्शन हो रहा है. एंड उसमें भी if you have to get that filtered rank and top rank and service of your choice and then cadre of your choice and what not, तो भाई आप सब कुछ बना बनाया से तो नहीं हो जाएगा ना, नहीं तो फिर सबका हो जाता. अंडरस्टैंड, एक कोचिंग में 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं in that one particular batch, and now it's online world and it's just open for everybody. You guys get the same resources, right? आप सब सेम ही किताबें पढ़ते हो, आप सब सेम ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हो. So what is a different thing that you are doing? You have to question this to yourself. You don't have to rely on what I'm saying or somebody else is saying. You have to rely on your own instinct and gut. If you're spending so much of time, money and energy in this preparation, you're compromising on a lot of things. So what exactly is the output? The result is not in your hand, but the way you are approaching the exam is in your hand. And therein it shows that how different you are from the crowd. And trust me, if you're different from the crowd in your preparation, you will be different from the crowd in your results also. ठीक है. अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए इन्होंने बात की टैक्स वगैरह को लेके, तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि ठीक है कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो क्या होता है ना, यहाँ पर बात हो गई है. उसके अलावा डेफिसिट और ये सब पे मैं पहले बता चुकी हूँ. RE और BE क्या होता है, रिवाइज एस्टिमेट होता है, बजट एस्टिमेट होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें. GDP क्या होती है, ठीक है, एक्सपेंडिचर को हम किस सेंस में समझते हैं, ये जो एलोकेशन है वो क्या सिग्निफाई कर रहा है आपको. यू डोंट हैव टू रिमेंबर द एग्जैक्ट एलोकेशन, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट exactly this is signifying. ठीक है. When they are telling annual financial statement, why are they not writing just budget? ठीक है, budget is a term which is not used in the Constitution of India. They use the word annual financial statement. So ये सब आपको पता होना चाहिए किस आर्टिकल से रिलेटेड है etc. इसमें मैं काफ़ी बात पहले कर चुकी हूँ, so I'll not repeat it. And I think this is the last section because इस पेज पे ऐसा कुछ खास नहीं है. श्रीलंका से रिलेटेड है बिकॉज इट इज़ एन आइलैंड नेपर, तो आप कुछ बेसिक चीज़ें जान सकते हैं. ठीक है, यू कैन जस्ट गो थ्रू द क्विज एंड इफ़ यू फाइंड एनीथिंग इंटरेस्टिंग यू कैन जस्ट रिमेंबर दैट. ओके, बाकी तो चल जाएगा. सो आई थिंक हियर वी एंड, या दिस इज़ डन. So here we end the discussion on the newspaper dated February 4th, 2022. Hope you guys had a great time and hope these sessions are helpful to you. Please do share your feedback. It's really, really motivating for me and of course helps me to cover out any loophole if there is any. And please do subscribe to the channel. Thank you so much guys. I'll see you in the next video. Please do access all the playlists. You have got it and I do regularly update them. Chaliye then, I'll see you guys tomorrow and in the next video. Bye bye then. Take care.